Today I have very special guest with me, Ayush. So Ayush is currently pursuing masters from NTU Singapore. Ayush, I was trying to catch you a very long time, but today I got chance to basically interact with you. Thank you very much for coming on the Yourpedia and welcome to Yourpedia platform. Okay. Thank you. Hmm. Yeah. So Ayush, many students nowadays want to go to NTU and NUS Singapore. There are different type of master's courses. There are a lot of information and students have a lot of doubts. So I want to talk on behalf of the students. I have a lot of questions for you, which I want you to answer. But before that, can you quickly introduce yourself to our viewers, like from where you did your bachelor's, what was your CGPA, and when did you join this master's course? Okay. Yeah, sure. So I did my bachelor's from BIT Misra Ranchi in mechanical engineering by securing 8.6 CGPA. Then I Mhm. got a campus placement at JSW Steel Mumbai. There I worked for 1 year, and then I applied by giving the GATE exam in the current year only, in the final year of my mechanical engineering. And I applied, and when I got selected in NTU, then I resigned from my job, and Mhm. currently I'm doing the masters in NTU. Mhm. So Mhm. while applying, I applied to 2 3 colleges, means which was my domain related. So the Mhm. first one was Manchester University because the course was management, supply chain management, and Okay. in NTU the course was operations and supply chain Mhm. engineering. And in Okay. NUS means the name of the course actually varies, depends on which university how they are pronouncing. So it depends. So Okay. everywhere it was different. So I applied to these 3 colleges, which was my target. Then I got selected in University of Manchester and NTU Singapore. I got rejected in NUS. So Okay. so these 3 colleges which I applied. And before going to the masters, there are actually of 2 types of courses. One is through by research, and one is by coursework. So in Mhm. coursework, you just have to take 10 modules to complete your master's degree. Okay. In research, you have to take 8 modules, and one as a dissertation you have to Mhm. give as a report. Okay, so Ayush, before I come to these two different type of modules, I want something, I want to know some more information from your side. So first of all, many students, they tried for Indian universities like IITs, IISc after this GATE score. After once they get the GATE score, so they tried for these universities. So what motivates you to try for National University of Singapore, NTU Singapore, and the University of Manchester, as you mentioned? So how you get this idea कि मैं यहाँ apply कर सकता हूँ and I want to pursue from there. uh, this actually I got motivated from Vijender sir only, because he actually, Mhm. one day I was just talking with him, and he accidentally just told me that, is there any job in India which give you salary that much, which they will pay Mhm. you? He Yes, just yes, yes. said this one line. Hmm. So that actually, then I started analyzing myself, that where I stands. Hmm. Then I found that these 3 universities can be my targeted university. Hmm. करेक्ट करेक्ट तो मेरे साथ भी So ऐसा ही हुआ था व्हेन आई वाज इन okay. जॉब तो मुझे भी Hmm, एक दिन यही लगा कि वट एवर सैलरी आई एम गेटिंग अगर मैं यूएस hmm, जाता हूँ तो hmm. पीएचडी में स्टाइपेंड मेरी सैलरी से ज्यादा एंड सैलरी Huh. यूएस में इज वेरी डिफरेंट लाइक वेरी वेरी हाई Yeah. देन इंडिया so this Hmm, can be one of the motivation. Okay, so फॉलोइंग टू दिस माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या प्रोफाइल होना चाहिए अगर तुम्हें एनटीयू एंड एनयू सिंगापुर में अप्लाई करना है तो किस टाइप का प्रोफाइल रहता है बच्चों का and as you mentioned there are two type of courses, one is by thesis, one is just coursework, and I think thesis is more competitive but you will get stipend, you will get funding for that. So can you elaborate
दो कोर्सेज जो हैं, एंड सेकंड थिंग इज कि ओके किस टाइप का प्रोफाइल चाहिए दोनों में जाने के लिए। ओके। सो फर्स्ट, ये कोर्स वर्क, बाई कोर्स वर्क जो है उसमें एक्चुअली अराउंड 8.4 टू 8.7 सीजीपीए के बीच में अगर किसी का है तो वो बहुत अच्छा प्रोफाइल है। हम्म और एट प्रेजेंट क्योंकि बहुत लोग एप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम्म फीस भी ज्यादा है, और पिछले एक साल में कंडीशंस बहुत खराब हो गया है मार्केट का, और बहुत लोग हम्म के जॉब चले गए हैं, तो जो मतलब अच्छा कैंडिडेट भी है वो भी थोड़ा कम अप्लाई कर रहा है, धीरे धीरे वो इंक्रीज ओके हो रहा है। तो जिसका भी हम्म सीजीपीए 8.4 टू 8.7 है वो बहुत एक अच्छा स्कोर है। अब हम्म, जब एप्लीकेशन करते हो ना तो उसमें वेव्ड ऑफ कर देता है कि आप एग्जाम दो या मत दो, बट आई विल सजेस्ट कि एग्जाम आप दो, क्योंकि वो एप्लीकेशन को और इम्प्रूव कर देता है, आपके किस सिलेक्शन एग्जाम होने की के बात चांस। कर रहे हो, किस एग्जाम की बात? जैसे गेट हो गया, जीआरई हो गया, कोई भी आप एग्जाम चूज कर सकते हो जो आपके मतलब जो हम्म आपके रीच में हो। हम्म जैसे हम्म, हम्म। मैंने गेट दिया था तो वो एज अ गेट एग्जाम मैंने गेट स्कोर को अपने एप्लीकेशन में अटैच कर दिया। और कितना का गेट स्कोर चाहिए होता है अगर हमें अप्लाई करना है वहाँ पे? ऐसे तो क्वालिफाइंग वहां पे लिखा हुआ है 90 परसेंटाइल, हम्म बट 96 प्लस विल बी वेरी वेरी गुड। गुड। तो हाँ, तुम्हारा क्योंकि बहुत लोग होगा। 96% होना चाहिए। मेरा मेरा था 97.7 था, मेरा ओके 642 गेट स्कोर था। आई सी। ओके ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस गेट, तो आई थिंक गेट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिखा होता है इस टाइम पे, बिकॉज हम्म दे वर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर 1 ईयर। इसके अलावा कोई एग्जाम? सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आई वांट टू क्लैरिफाई, गेट और जीआरई दोनों लिखने पड़ते हैं या ओनली वन, इधर गेट और जीआरई? एनी वन, ओके आइदर एनी गेट वन। और जीआरई। हाँ ओके। एंड सेकंड थिंग, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। सो हाँ बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं दे स्केयर्ड फ्रॉम आईएलटीएस टोफल, तो इनके बिना जा सकते हो आप एनटीयू एनयूएस सिंगापुर में? हाँ, चांसेस तो है जाने का। अगर आपका ओके सीजीपीए बहुत अच्छा है तो आप अपने कॉलेज से वो लेटर निकलवा लो, जो हम्म इंग्लिश में बताएगा कि ये 4 साल दिस स्टूडेंट हैज डन इन इंग्लिश ऑल 4 years एट दिस कॉलेज। ओके ओके। तो सो तुमने ये चांस एग्जाम दिया बनता था है। या तुमने ये सर्टिफिकेट लिया नहीं, था ये? मैंने तो दोनों एग्जाम दे के, क्योंकि मेरे को मैनचेस्टर भी मेरा टारगेट था तो वहां पे तो कंपलसरी था देना। हम्म तो मैंने हम्म तो वो दिया था क्योंकि मेरे को वो भी कॉलेज मेरे टच में था, तो इसीलिए। ओके और देना अच्छा ही बात है, अपने तरफ से हम्म पूरा कोशिश करना चाहिए कि एप्लीकेशन 99% क्या 100%, मतलब आपका चांस तो बने अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो। सो वन थिंग आई अंडरस्टैंड कि एक सीजीपीए अच्छा हो, आई थिंक हम्म अबव 8 वी कैन से नाउ डेज, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट अप्लाइंग, हम्म सो वी कैन से अबव हम्म 8। एंड सेकंड हम्म थिंग कि गेट दे दो, 90 हम्म परसेंटाइल उन्होंने कट ऑफ रखी है, बट आई थिंक 95 से ऊपर हम्म परसेंटाइल हो तो यू हैव वेरी गुड चांसेस। ओके। हम्म एक सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी प्रोफाइल ऑलरेडी बहुत अच्छी होती है, बिकॉज नाउ डेज स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी अवेयर, उनके पास तुम ये कह लो कि बीटेक में रिसर्च पेपर्स हैं, दे डिड सम वेरी गुड इंटर्नशिप्स, दे हैव रिसर्च पेपर, तो या अगर उनको एमएस बाय रिसर्च कोर्स चूज करना है, जो हम्म कोर्स है जिसमें थीसिस करने हैं, तो व्हेन दे आर सिटिंग इन इंडिया, can they send emails to the professor and they can secure these position with fully funding? What do you think? they can try, but it also depends on the professor in which domain they are working. Means, Okay. is they are aligning with the student profile or not? मीन्स Okay. उनको अगला क्या रिक्वायरमेंट है, अगर उसमें अगर वो स्टूडेंट काम किया हुआ है देन वो होता है ना कि मैच हो गया, Yes, तो चांसेस correct. बन जाता है। तो Okay. वही। And हम्म if I am not approaching any professor, मैं directly apply कर रहा हूँ एनटीयू या फिर हम्म एनयूएस सिंगापुर में, okay, so हम्म is there any chances कि मुझे वो थीसिस वाला एमएस मिलेगा एंड मुझे फंडिंग मिलेगी, मेरी डिग्री फुली फंडेड हो सकती है? इज देयर एनी चांस? या देर इज चांस। वो उस पर डिपेंड करता है कि आपका सीजीपीए, जितना ज्यादा आपका सीजीपीए होगा
वो एक हम्म स्टैंड आउट करता है बाकी लोग से. Like हम्म I saw one profile, he got 8.91 his CGPA was. ओके So वो एक फैक्टर है. और उसका इंटर्नशिप भी 2-3 अच्छा रिसर्च इंटर्नशिप था उसके बैचलर्स में. हम्म और वो भी हम्म 2 महीने का नहीं, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन का था, अराउंड 4 to 5 months इन अ लैब, रिसर्च लैब. सो ओके वो एक अच्छा चीज है. हम्म. और उसको कितना फंडिंग मिला? आई मीन इट्स फुल्ली फंडेड प्लस स्टाइपेंड, तो क्या रहता है वहां पे, फंडिंग कितना रहता है? उसको अराउंड ही इज गेटिंग आई थिंक 1800 to 2200 सिंग डॉलर. प्लस ट्यूशन फीस इज वेव्ड ऑफ, राइट? हाँ, या एवरीथिंग इज वेव्ड ऑफ. ओके, आई सी। एंड अगर तुम मास्टर्स बाय कोर्स वर्क जा रहे हो, मतलब कि जिसमें फंडिंग नहीं है, यू आर नॉट डूइंग हम्म. रिसर्च, देन हाउ मच इज द एक्सपेंडिचर इन सिंगापुर? तुम्हें अभी तक कितना देना पड़ गया उसमें? अभी तक तो मैंने वही अराउंड 10.5 लाख, जो फर्स्ट 5 कोर्सेज का फी था. क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा चीज है कि आप आराम से लास्ट में पे करो फी. कोई जल्दी नहीं है, मतलब आप रजिस्टर कर दियो कोर्स, आराम से दो, जब आपका सेमेस्टर एंड होने वाला हो ओके। आराम से दो. हम्म। तो ओवरऑल एक्सपेंडिचर कितना आ जाता है सिंगापुर में मास्टर्स का? अराउंड लाइक 20 लाख आपका ट्यूशन फी, एंड हम्म अराउंड ऑन एवरेज 75 to 80,000 पर मंथ लिविंग प्लस रेंट. सो अराउंड तुम्हारा 30 लाख पूरा। अगर तुम वहां पे हम्म. जाके कुछ नहीं करते हो तो तुम्हें अराउंड 30 लाख में डिग्री बढ़ती है। बट नाउ आई वांट टू नो कि तुम वहां पे पहुंच गए तो मास्टर्स वाले लोग, हम इंडियन है, होते तो सब जुगाड़ी हैं, सो आई थिंक हम्म. उसमें कुछ पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप जो तुम्हें पे करें, हम्म. इस टाइप से स्टूडेंट्स थोड़ी मनी रिकवर भी करते होंगे, राइट? सो वो क्या हम्म. क्या अपॉर्चुनिटीज रहती हैं वहां पे? हाँ, मतलब पार्ट टाइम का तो बहुत अच्छा सीन है. मतलब जैसे मैं जैसे ही पहुंचा अगस्त में, वो एक करियर फेयर हुआ, तो उसमें मैंने जाके सभी को अपना रिज्यूमे दे दिया. तो दो ओके तीन जगह से मेरे को पार्ट टाइम इंटर्नशिप के लिए कॉल आ गया. ओके। एक जगह मैंने किया वही 6 मंथ, तो मेरा वही रहने खाने का पूरा खर्चा निकल गया. कॉस्ट ऑफ लिविंग निकल गया, हाँ. ओके। हम्म. और अब मैं दूसरे में ज्वाइन करने वाला हूँ फ्रॉम 15 से. ओके, तो इट मीन्स कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग का तुम्हारा 10 लाख है वो तुम पार्ट टाइम से निकाल लो, वो आई थिंक हम्म. इजीली निकल जाता है। तो ओवरऑल हम्म. एक्सपेंडिचर जो मास्टर्स का है वो 20 लाख का है। तो आई थिंक जो हम्म. स्टूडेंट बिना गेट के आईआईटी हैदराबाद में ज्वाइन करते हैं, देयर हम्म. एक्सपेंडिचर इज 15 to 18 लाख। जो लोग जर्मनी में जाते हैं, दे आर अगेन स्पेंडिंग हम्म. 15 to 20 लाख ऑन देयर कॉस्ट ऑफ लिविंग, बिकॉज ट्यूशन फी वहां पे नहीं है। So हम्म. I think Singapore is kind of similar. इतने में तुम्हारा हम्म. हो जाता है, एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज वेरी वेरी हाई इफ यू डू डिग्रीज फ्रॉम दिस प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी। अब हाँ. जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हर स्टूडेंट का होता है कि भाई एनटीयू एनयूएस सिंगापुर कितना डिफिकल्ट रहता है वहां पे। मैं एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी से बीटेक करके जा रहा हूँ, हाउ डिफिकल्ट इट इज कोर्स वर्क और यहाँ पे सरवाइव करना? मतलब थोड़ा तो टफ रहता है, क्योंकि डिपेंड करता है ना आप कितने कोर्स लिए हो. इट कैन बी हम्म इजी, इट कैन बी डिफिकल्ट. लाइक अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हो मास्टर्स, तो आपको हम्म 2 साल मैक्सिमम चांस मिलता है, आप 2 साल में कंप्लीट करो. ओके लाइक मैंने 5-5 कोर्स लिया है, मतलब 1 साल में ही मेरे को कंप्लीट करना है. क्योंकि ओके तो आप ऐसे भी ले सकते हो, 3-3 लिए फिर 2-2 लिए, टोटल 10 ओके आपको ओके। किसी भी तरह कंप्लीट करना है. तो डिपेंड हम्म करता है. अगर आपको लगता है कि मतलब कि हम ज्यादा भी नहीं, आराम से स्लोली स्लोली आप 1.5 हम्म ईयर्स में भी कर सकते हो. हम्म 3-3 हम्म कोर्स लिए और फिर एक 4 कोर्स ले लिए, जब मोमेंटम ओके। आ गया तो डिपेंड करता है वो एक्चुअली स्टूडेंट पे. अगर उसको वो प्रेशर झेल सकते हैं तो 5 ले लेते हैं. आई थिंक इफ आयुष कैन डू 5 कोर्सेज हाँ. इन वन सेमेस्टर तो हम्म. हो सकता है, हाँ. मतलब पांच नहीं तो हाँ, चार तो तुम कर ही लोगे, राइट? 4 तो कर ही सकते हैं आराम से. हम्म. ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइफ कैसी है वहाँ पे एक इंटरनेशनल इंडियन स्टूडेंट्स की? इंडियन कम्युनिटी कैसी है वहाँ पे? इंडियंस काफी हैं सिंगापुर में, या कैसी चल रही है अभी तुम्हारी लाइफ? या
नहीं, इंडियंस तो कम है, बस साउथ इंडियंस बहुत ज्यादा है। साउथ ओके। इंडियन मतलब नॉर्थ इंडियन थोड़े कम मिलेंगे, बट ओवरऑल हम्म साउथ इंडियंस काफी ज्यादा है। और एक लिटिल इंडिया करके एक प्लेस भी है वहां पे। आई हर्ड अबाउट दैट, यस। हाँ है हाँ, तो सिंगापुर, हाँ। वो बस वहां पे सब इंडियंस ही मिलेंगे आपको। ओके ओके, आई थिंक हर कंट्री में ऐसा है कि एक लिटिल इंडिया आपको मिलता है जहाँ पे आपको पूरी इंडियन कम्युनिटी मिलती है। एंड व्हाट अबाउट फूड? फूड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है हम हाँ, इंडियंस की। तो कैसा है इधर, मतलब इंडियन फूड मिलता है? नहीं, इंडियंस फूड के लिए तो आपको दिक्कत एकदम नहीं होगा, क्योंकि हर एक फूड कोर्ट पे एक इंडियन शॉप तो आपको मिलेगा ही। ओके ओके, सो इंडियंस आर एवरीवेयर हाँ जहाँ भी हाँ, तुम जाओ। इंडियंस का, हाँ। वो तो, और कॉलेज में तो 3-4 रेस्टोरेंट है इंडियन। ओके ओके ओके। हम्म। सो अच्छा है, अभी तुम राइट नाउ यू आर इन इंडिया, तो कितनी बार आ जा सकते हो तुम? एक, अगर तुम वहां पे पढ़ रहे हो तो कई लोग होम सिक होते हैं, दे वांट टू कम आफ्टर every 6 months, every semester. So is it possible? What do you think? Yeah, for 6 months you can come, because you will get 1 month holiday. Like Hmm. my last paper for the first semester was on 29th November, and the Hmm. whole December till Hmm. 8th January was holiday. Okay. तो तब फिर, तुम इंडिया आ ओके, जाओ। हाँ, हम्म उस टाइम आप इंडिया आ जाओ। अराउंड 1.5 months कंप्लीट टाइम रहता है। दैट्स रियली गुड। जो हम यूएस में हैं, हाँ, हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, हमें एयर टिकट के बारे में सोचना पड़ता है कि एक्सपेंसिव है ये वो। ओके, बट सिंगापुर इज या वेरी नियर, राइट? या इट्स वेरी नियर। और वो फेयर का तो प्राइस ही बहुत कम है। मतलब जितना आप नॉर्थ साइड से आप बैंगलोर जाते हो, उतने हम्म में आप सिंगापुर आ जाओगे। दैट इज एक्चुअली वेरी गुड थिंग। आई कैन से दैट कि हम्म। दैट इज वेरी गुड थिंग। हम्म। Okay, Ayush, it is really very good interaction with you. So what I understood कि there are two categories, two type of master's courses. एक है कि बहुत अच्छी प्रोफाइल है तो फुली फंडेड मिलेगी, हम्म। जिसमें तुम्हें थीसिस करना रहेगा, बट उसमें तुम्हारी इंडिया में प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। व्हेन यू आर डूइंग बैचलर्स, हम्म। तो तुम्हारा सीजीपीए जितना हाई हो, 8.7 8.9, लाइक हम्म। दैट, प्लस यू शुड हैव हम्म। सम रिसर्च वर्क, तो तुम्हें मिलता है हम्म। मास्टर्स बाय थीसिस, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड यू विल गेट मंथली स्टाइपेंड। दूसरा है मास्टर्स बाय कोर्स वर्क, जिसमें कि if you think you are above 8 and your gate percentile is above 95, I would say, so you can take chance in NTU and हम्म। NUS Singapore. Shortlist the courses department कहाँ पे जाना है, and you have to do 10 courses after going there. And I think this is very very good opportunity through gate. Regarding to TOEFL IELTS, if your CGPA is good, you can get one certificate from your current university that your previous education was an English medium. They will give you one certificate. You can submit that. तो ऐसे तुम NTU या NUS सिंगापुर में जा सकते हो। Expenditure wise, it is 20 lakh on your tuition fee plus 10 lakh cost of living. Cost of living जो है वो पार्ट टाइम से तुम कर सकते हो, I think recover. And yeah, you can enjoy your life in Singapore and your master's degree. तो थैंक यू वेरी मच आयुष। हम तुम्हारे ओके, से इंटरेक्शन करते रहेंगे, एंड आई थिंक लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वांट योर गाइडेंस। तो अगर किसी को हेल्प चाहिए, आई विल कनेक्ट दो स्टूडेंट्स विद या, यू। ओके, ओके, सो या, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन योर पीडिया प्लेटफॉर्म।